Okay guys, in the last video we started with the free radical addition. Okay, there was a problem regarding making the video, so I'll continue this part and explain you the entire thing once again. Free radical addition mein the entire addition take place in the presence of peroxide. Normally we use a benzoyl organic peroxide, and you know that in peroxide two oxygen atoms are linked by a single bond having -1 charge each. For example, addition of HBr across unsymmetrical alkene propene. So if you take an unsymmetrical alkene like propene, HBr can add in two manner. Either the negative part of the region goes to carbon having less and H plus goes to more. This is first type addition. Or the negative part of the region goes to carbon having more and H plus goes to less. This is the second type addition. So we get two different products. 2 bromopropane, 1 bromopropane. But question is which is major and minor. So this peroxide effect, this reaction, if it takes place in the presence of peroxide, it follows anti-Marconic rule, also called as Crash-Mayo effect. So this Crash-Mayo effect or anti-Marconic rule, according to Marconic rule, if you remember, the negative part of the region goes to carbon having less for the major product. But according to anti-Marconic rule, the negative part of the region goes to carbon having more as the major product. But if Br minus goes to CH2, you'll get a major product instead of going CH across the double bond. So here, if Br minus goes to CH2, you get 1 bromopropane as a major product and 2 bromopropane as a minor. लेकिन अगर हम लोग ने पेरोक्साइड नहीं लिया होता तो ये आपका मेजर बनता 2 ब्रोमो और 1 ब्रोमो माइनर बनता. अब क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज हैपनिंग. तो रीजन इज free radical addition. The addition does not take place via formation of electrophile. It takes place via formation of free radical. So how to proceed with this? How to understand this? Now to carry out this reaction, first in a container, in a large container we take peroxide. हम लोग सबसे पहले peroxide लेंगे, benzoyl peroxide. Heat it. When you heat it, it undergoes a cleavage, homolysis. Equal bond breaking होगा. One of the electron goes to this oxygen, another electron goes to this oxygen. So you get a peroxide, a benzoyl peroxide. Now this benzoyl peroxide also undergoes homolysis, जिसमें C और ये C का bond, मतलब ring के C का bond, and this carbonyl C undergoes a homolysis where one electron shift on this carbon atom of C6 and one electron shift on carbon of carbonyl. जो इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन पे शिफ्ट हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बना देगा, अ बॉन्ड, दैट इज C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, गैस निकल जाएगा. And this electron shifts on the phenyl carbon atom, so you get a phenyl free radical, highly unstable. So unstable hai. Now you add lot of HBr. So when you add HBr, even the HBr undergo homolysis to form H free radical and bromine free radical. H free radical goes with C6H5 to form C6H6, and lot of bromine free radicals are generated now in the system. Now you add propene in the second step. So when you add propene in the second step, propene का जो pi bond है, it undergoes homolysis. देखो एक एक इक्वल ब्रेकिंग होगा और एक्चुअली में ऐसा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, CH3 CH with इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड CH with इलेक्ट्रॉन, CH2 with electron. Now if Br free radical combine with this CH, it forms this structure, see, and if Br free radical combines with CH2, you get this structure. So this structure is a secondary free radical, see properly, and this structure is a primary free radical. And you know, with respect to our free radical lecture, that secondary free radical is more stable than primary. तो ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा मेजर और ये कम अमाउंट में बनेगा माइनर, ठीक है. देन फाइनली HBr, more HBr undergo cleavage to form H free radical, Br free radical, H free radical attack on CH, and it results into the formation of 1 bromopropane as a major product. तो एंटी मार्कोनिक में negative part of the region goes to carbon having more number of hydrogen across the double bond for the major product. ये याद रखने का हम लोगों को. Second thing what you need to remember कि reaction of alkene and alkyne with HBr in presence of peroxide follows anti-Marconic and give you a major product. But HF, HCl, HI do not follow
एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। वाई? पेरोक्साइड इफेक्ट ये तीनों फॉलो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ HBr फॉलो करते हैं। वाई? बिकॉज HF एंड HCl बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इट डजंट मेक, तो दीज बॉन्ड्स आर strong, therefore it doesn't break. But HI bond, it breaks to form H and iodine free radical, but iodine free radical prefers to combine with the another iodine free radical which is produced by another cleavage of HI and forms I2. Instead of attacking on the propene, it will form I2. So these three do not give anti-Markovnikov rule. ये बात समझ लेना, while addition of HX across the double bond. Okay, now remember, under normal condition एंटी मार्कोनिक इज पॉसिबल, मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट दिखेगा आपको, बट कब दिखेगा? व्हेन देर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप विद अ डबल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड I। नाउ दिस I इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। कौन से माइनस आई ग्रुप हो सकते हैं? नाउ दिस कैन बी a CH3 trihalogen group, this can be a cyanide group, this can be a nitro group, this can be a COH group, this can be a CHO group, this can be COCl group, this can be CONH2 group, ये भी हो सकता है इसके अंदर। this can be COOR group एस्टर का। ओके, ये अगर ग्रुप आपको मिल रहे हैं, प्रेजेंट है यहाँ पर along with this डबल बॉन्ड सिस्टम, तो वो एडिशन आपको एंटी मार्कोनिक में ही जाएगा। मतलब इफ आई राइट डाउन दिस रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसा लिखा है मैंने, तो देखो ये एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है विच इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्ड। नाउ यू एड HCl टू दिस सिस्टम, तो नाउ HCl बाय डिफॉल्ट इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिक, and for a major product across the double bond the negative part of the region goes to carbon having more number of hydrogen instead of going to less। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक माइनस आई ग्रुप है, H goes to this part, so you get a structure CH2Cl single bond, अब H इधर चले आएगा CH2CHO। you have to remember this। क्यों? उसका एक रीज़न है। the reason is very simple कि if you see this structure, if I write down this structure as CH2 double bond CH attached to C double bond O and H, तो this out of this sigma and pi bond ऑक्सीजन एटम पुल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसकी वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट योर रेजोनेंस। सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यू गेट द स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O माइनस H। क्लियर है? और इस कार्बन पे क्या डेवलप होगा? प्लस। तो नेगेटिव चार्ज को बाय डिफॉल्ट यहीं जाना पड़ेगा। तो याद रखने का कि नॉर्मल कंडीशन में भी एंटी मार्कोनिक फॉलो हो सकता है, HCl HBr HI सब मॉलिक्यूल देंगे एंटी मार्कोनिक, बट व्हाट शुड बी द कंडीशन दैट डबल बॉन्ड के साथ में क्या अटैच होना चाहिए? अ CHO ग्रुप, दैट हैज़ टू बी देयर। अगर वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो नॉर्मल मार्कोनिक फॉलो करेगा, वो एंटी मार्कोनिक फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? नाउ मैंने अभी तक के आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, I've explained till now electrophilic addition. In that I gave example of Markovnikov rule when you add unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkene, और एक एग्जाम्पल दिया है फ्री रेडिकल एडिशन का, जिसमें एडिशन एंटी मार्कोनिक जाता है, और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया है देयर इज अ नेगेटिव आई ग्रुप, एंटी मार्कोनिक फॉलो होगा। लेकिन मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एक और एग्जाम्पल देना है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द एडिशन ऑफ हैलोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ओके, तो लिसन टू मी प्रॉपर्ली। हैलोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड के लिए क्या है, रूलिंग क्या है? आई एम गिव यू एग्जाम्पल ऑफ दिस इलेक्ट्रोआ, गिव यू मोर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर है? दैट इज एडिशन ऑफ X2 अक्रॉस C डबल बॉन्ड C। देखते कैसा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ X2 अक्रॉस द C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल एंड you get to learn a lot of things with this example. सबसे पहले याद रखो कि X2 when it is been added
across C double bond C, the addition follow ionic or electrophilic mechanism. ओके, मैकेनिज्म फॉलो करता है, मतलब नॉर्मली आयनिक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, वेयर देर इज अ हेट्रोलिटिक क्लीवेज टेक प्लेस. सेकेंड पॉइंट, रिमेंबर, very important, that addition of halogen is anti addition. एंटी एडिशन, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ये हमेशा एंटी एडिशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अल्कीन बनाया, सी डबल बॉन्ड सी, आप इजीली समझ जाएंगे, सी डबल बॉन्ड सी, हियर देर इज अ CH3H, और इस पर मैंने ब्रोमीन ऐड करना है, Br2 ऐड करना है. ओके, अक्रॉस द डबल बॉन्ड. सो नॉर्मली लोग क्या करेंगे, एक Br यहाँ ऐड करेंगे, एक Br ऐड करेंगे, बट स्टीरियो सिलेक्टिव है ये रिएक्शन. तो विद रिस्पेक्ट टू स्टीरियो केमिस्ट्री, द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, one of the Br goes to this carbon atom, one of the Br goes to this carbon atom from back side. So you get a structure like this, CH3 BrH C BrH CH3. गौर से देखो, सी प्रॉपरली, दिस टू कार्बन बिकम्स कायरल, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है और इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, दोनों हाफ डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं. तो इसके लिए व्हेन द एडिशन टेक प्लेस, 50% will be D form dextro and 50% will be L form levo, मतलब they gave rise to a racemic mixture. ये मैंने कहाँ ऐड किया है, सिस ब्यूटूइन पे. सिस मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही साइड पे है. सो व्हेन ब्रोमीन इज एडेड अक्रॉस सिस ब्यूटूइन, इट शोज एंटी एडिशन. एक फ्रंट से जाएगा, एक बैक से जाएगा, एंड यू विल गेट अ एंटी प्रोडक्ट इन दिस केस. ओके, अभी सपोज मैंने इस केस में ना ट्रांस लिया होता, ट्रांस मतलब H अटैच टू C अटैच टू CH3 डबल बॉन्ड C अटैच टू CH3 अटैच टू H. ओके, सपोज आई हैव टेकन अ ट्रांस प्रोडक्ट, मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन दी ऑपोजिट प्लेन, एंड अभी मुझे यहाँ पर दो ब्रोमीन ऐड करने हैं. तो ब्रोमीन का एडिशन हमेशा कैसा होने वाला है, it will be obviously a anti addition product. So if it is a anti addition product और ये trans product है, तो it gave rise to a molecule that is CH3 C Br C Br CH3 H H, where it has a plane of symmetry, chiral है but it has a plane of symmetry, और दो हाफ सेम दिख रहे. such compound are called as which compound, मेजो कंपाउंड, विच बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव. मतलब जब ट्रांस पे आप ब्रोमीन ऐड करोगे तो वो एंटी एडिशन ही देखा, बट एंटी एडिशन की वजह से दोनों ब्रोमीन एक साइड ही आ जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी आपका मॉलिक्यूल क्या है, ट्रांस प्रोडक्ट है. दैट्स द रीज़न. सो वो रीज़न होने की वजह से आपको मेजो फॉर्म मिलेगा. लेकिन अगर आप सिस फॉर्म ले रहे हो और उस पर ब्रोमीन ऐड कर रहे हो तो फिर से एंटी एडिशन होगा, जिसकी वजह से दो ब्रोमीन डिफरेंट प्लेन में आ जाएंगे. सो यू गेट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस where you have 50% of D form, 50% of L form, so it will racemize. You got a racemic mixture in it. Now let's see what is the mechanism behind this. ये example मैं लेता हूँ. Let's take an example of cis-butene जिस पे ब्रोमीन ऐड हो रहा है. Okay, so addition कैसा होगा, let us try to understand. सबसे पहले mechanism में in step 1 the halogen, suppose हम लोग ने ब्रोमीन लिया है. In polar media, it undergoes a heterolytic fission. Heterolytic fission मतलब unequal breaking. The entire pair of electron will be shift on bromine to form Br plus and Br minus. This is called as bromonium ion, and this is bromide. Bromonium bromide. Okay, we have a two different ion. अभी अपने अपना molecule ऐड किया है cis वाला, C डबल बॉन्ड C. ठीक है, यहाँ पर एक आ जाएगा CH3. मैं इसको ऐसा बना देता हूँ. Here there is a H. Here there is a CH3 जो हमारे फ्रंट में आ रहा है. Here there is CH3H पीछे की साइड, सपोज आप फ्रंट से देख रहे हो इसको. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस Br प्लस, अब ये डबल बॉन्ड सिस्टम में ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चार्ज ही अटैक करेगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है. तो यहाँ पर Br प्लस इज बेसिकली अ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज या इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैक करेगा. व्हेन अटैक
it will form a complex. The complex will look like this. देखो यहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डोनेट हुआ and it appears like this, C, a bond C, यहाँ पर Br आ जाएगा प्लस फॉर्म में जो इस पे अटैक कर रहा है पाई बॉन्ड पे. Here there is a CH3, H and this is what, CH3 plus Br minus having complete octet. Now this Br plus will try to interact with this pi bond over here forming a complex. क्लियर है? तो ये पार्शियल बॉन्ड बन गया पहले. Now उसके बाद में what will happen after this partial bond formation, क्योंकि ये दोनों जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक पार्शियल बॉन्ड बनेगा. Now Br minus will attack the entire structure. तो स्टेप 2 में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल रिमेनिंग है वो अटैक करेगा, बट इट कैन नॉट अटैक दिस कॉम्प्लेक्स H CH3 फ्रॉम द साइड ऑफ Br बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पर Br प्लस का पार्शियल बॉन्ड है. सो दिस Br माइनस विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड टू वन ऑफ द कार्बन एटम. सपोज ये कार्बन पे अटैक किया, सो नाउ द एंटायर स्ट्रक्चर विल बी C H CH3 Br C Br CH3 H. So you get an NP product like this, NP addition. Clear है? But हम लोगों को for our knowledge, for examination, what we need to remember, a very important point you need to remember about the addition of halogen across the double bond. कि suppose if you take a cis form, CH3C H double bond CH CH3 cis form लिया है मैंने, ओके और उसमें अगर मैं एक हैलोजन ऐड करता हूँ एंड सपोज ये हैलोजन जो है वो एंटी एडिशन, नॉर्मली वो एंटी एडिशन नहीं देता, एंटी एडिशन देगा. जब वो एंटी एडिशन देगा तो एक हैलोजन बैक साइड से एक फ्रंट साइड से, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3C. या मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में बता देता हूँ. यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर एक X आ जाएगा, ओके फिर यहाँ पर एक X आएगा और यहाँ पर एक H होगा. मतलब बेसिकली यू गेट 50% ऑफ D एंड 50% ऑफ L ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, अ रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा. लेकिन अगर सपोज ऐसा लिख के आया एग्जाम में कि देयर इज अ सिन एडिशन ऑफ X2, सिन मतलब आप एक ही साइड पे उसको ऐड कर रहे हो, मतलब एक हैलोजन ये कार्बन पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पर ये हैलोजन इस पे ऐड हो रहा है डायरेक्टली. तो अगर सेम एडिशन हो रहा है, सिन में सेम एडिशन, इफ यू रिमेंबर सिन एंड एंटी, सिस एंड ट्रांस वाला, तो यू गेट CH CH3 X and X. तो दिस इज बेसिकली अ मेसोफॉर्म. सो रिमेंबर व्हेन सिस अल्कीन में एंटी एडिशन हुआ तो DNL रेसिमिक, सिन एडिशन हुआ तो मेसोफॉर्म. अभी दूसरा कौन सा अल्कीन होता है? द सेकेंड अल्कीन इज व्हाट? ट्रांस. तो सपोज आई टेक अ ट्रांस अल्कीन, योर CH3 H डबल बॉन्ड C H CH3. देखो दोनों H अलग अलग प्लेन में, ट्रांस है. अब इस ट्रांस पे हम लोग एलोजन ऐड करते हैं. सपोज ये जा रहा है एंटी एडिशन, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रक्चर पहले ही ट्रांस है, उस पर आप एंटी एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? C फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला X X CH3 H H डायरेक्टली मेसोफॉर्म. तो यहाँ पर मेसोफॉर्म मिल जाएगा इसके एंटी एडिशन, ट्रांस के एंटी पे, और यहाँ पर सिस के सिन पे मिल रहा है मेसो. ये डिफरेंस है. और अगर आपने एडिशन सिन वाला किया, सो नाउ व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट अ रेसिमिक मिक्सचर. अगेन सेम स्ट्रक्चर मिलेगा आपको CH3, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह से ऐड हो रहे हैं, एक फ्रंट से हो रहा है एक बैक से हो रहा है. तो यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, X H H X and CH3. This is 50% D form and 50% L form. बेसिकली एक आपको रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है इसके अंदर. सो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक एडिशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन एटम. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. रिमेंबर दिस फंडा. नाउ द थर्ड एडिशन रिएक्शन इज nucleophilic addition reaction. If you remember, a nucleophile is Nu minus. अच्छा, every reaction has nucleophile and electrophile, दोनों होता है रिएक्शन के अंदर. मतलब reagent आप जो भी रिएक्टेंट पे डालोगे, every reagent has two things, nucleophile, electrophile. बट देखना ये है कि पहले कौन अटैक करता है. Now this nucleophilic addition reaction is a characteristic reaction of C double bond O, carbonyl group.
बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अल्डिहाइड एंड कीटोन. एंड कार्बोनिल ग्रुप नेचर से एक पोलार होता है, वह ऑक्सीजन हैज डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन हैज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. नॉट टू दिस C double bond O, a polar molecule, if a nucleophile attacks, obviously nucleophile Nu minus will attack on the positive center, जिसके वजह से पूरा pi bond O पे शिफ्ट हो जाएगा and you get a structure like this. यहाँ पर Nu अटैच होगा O तो इलेक्ट्रॉन. अब बाद में हर रिएक्शन में दोनों होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे अटैक कर लेगा, गेट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट. यहाँ पर अटैक हो गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया. बट सबसे पहला अटैक किसने किया है? न्यूक्लियोफाइल. दैट इज वाई दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. बहुत ईजी है समझने के लिए. कार्बोनिल ग्रुप का ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ऑन अल्डिहाइड. ओके, तो अगर मैं इसका नॉर्मल रिएक्शन लिखूँ, दिस इज अ बेस, नॉर्मली इट इज बीन अ बेस कैटलाइज रिएक्शन. याद रखना, बेस कैटलाइज रिएक्शन होता है, मतलब इसमें एक बेस ऐड करते टू स्पीड अप द रिएक्शन. एसिड से इतना स्पीड अप नहीं होता. और एसिड से क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड है. अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे इसको कैटलाइज करने के लिए, तो खुद ये HCN वीक एसिड है जो डिसोसिएट नहीं होगा. सो यू डोंट गेट दैट इनफ न्यूक्लियोफाइल. सो टू गेट दैट इनफ न्यूक्लियोफाइल, नॉर्मली यू कैरी आउट द रिएक्शन इन अ बेसिक मीडिया. ओके, तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द जनरलाइज रिएक्शन, फर्स्ट मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ कैसा होगा. CH3CH डबल बॉन्ड O, HCN ऐड करना है. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस. तो H प्लस है, Cn माइनस है. Cn माइनस गोज टू दिस C विच हैज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. H प्लस विल गोज टू O हैड डेल्टा नेगेटिव चार्ज. ये पाई बॉन्ड पूरा O पे शिफ्ट हो जाएगा. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3CH, यहाँ पर आ गया Cn सिंगल बॉन्ड OH. दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन. इसका कंपाउंड का नाम साइनोहाइड्रिन होता है. एसिडाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोलते हैं बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम एसिडाल्डिहाइड. ना मैकेनिज्म देखोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा हाउ द रिएक्शन हैज बीन प्रोसीड. तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपने बेस ऐड किया है. ओके, तो ये बेस OH माइनस आयंस ये HCN से रिएक्ट करेगा, इसका H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ Cn माइनस आयंस. और ये जो H प्लस है from here it goes to oxygen to form an H2O. So you have a large amount of cyanide being produced inside. Okay, now step 2 में, which is a slow step, rate determining step, very important step. Step 2 के अंदर this cyanide will go and attack on a C double bond O system. तो साइनाइड आपका न्यूक्लियोफाइल है जो जनरेट हो गया. तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है. फिर उसके बाद में CH3CH डबल बॉन्ड O जो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है, साइनाइड आयंस आके अटैक करेगा किस पे, पॉजिटिव साइड से. पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट करेगा, O पे. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3CHCnO विथ 3 लोन पेयर्स माइनस साइन. ठीक है, नाउ दिस अनाइन इज वेरी स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू द अटैक ऑफ H प्लस, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड भी थोड़ा रेजोनेट कर सकता है. इसके लिए H प्लस पहले देखो, H प्लस क्यों अटैक नहीं करता है डबल बॉन्ड सिस्टम पे, उसका रीज़न ये है कि आपने उसको बेस कैटलाइज किया है, मतलब ज़्यादा H प्लस इन्वॉल्व रहेगा OH के साथ में. फिर उसके बाद में सेकेंड थिंग, अगर H प्लस पहले अटैक करेगा तो वो कार्बोकटाइन बनाएगा, दैट इज़ नॉट सो स्टेबल. क्योंकि H प्लस O पे अटैक करेगा तो वो कार्बोकटाइन बनाएगा, C पे प्लस आएगा, दैट इज़ नॉट सो स्टेबल एज कम्पेयर टू द अनायन फॉर्म. इसके लिए सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है. इसके 2 इंपॉर्टेंट रीज़न है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. देन स्टेप 3 विल बी, तो दिस स्टेप 2 याद रखना स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है. स्टेप 3 इज अ फास्ट स्टेप. जो आपका रिमेनिंग H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है वो आके फर्दर अटैक करेगा CH3CHCnO. ठीक है, वो पे H प्लस अटैक कर रहा है, तो मैं जो वाटर के साथ गया वैसे ही बना देता हूँ आपको समझने के लिए ईजी पड़ जाएगा. ये H प्लस आएगा, ये लोन पेयर इसको मिल जाएगा H प्लस को. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3CHCnOH प्लस OH माइनस. देखो आपका बेस वापस मिल गया. कैटलिस्ट का काम ही वही होता है. द कैटलिस्ट, द रोल ऑफ कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन बट नेवर गेट कंज्यूम, you get it back in the end. So you're getting back in the end. This is how the reaction proceed. And सबसे पहला अटैक किसने किया? A nucleophile. That is why this reaction is called as nucleophilic substitution reaction. And remember, most important point in this, the order of reactivity of aldehyde and ketone. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है C6H5C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH2C डबल बॉन्ड O
CH3. Okay, then उसके बाद में you have a CH3 C double bond O CH3, a normal ketone, acetone. Then you have C6H5 C double bond O CH3, acidophenone. Then you have a structure C6H5 C double bond O C6H5. Then उसके बाद में आ जाता है CHO aldehyde. Then you have COCH3. Then you have COCl. Then you have COOCH3. Then you have CONH2. And then you have COH. Okay, this is with respect to the attack of a nucleophile in general with respect to aldehyde, ketones and amide, all that stuff. Okay, वो सब चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड किया है. CHO इससे अटैच है रिंग से, ये सब ऐड किया है. मतलब ये सब ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ अल्डीहाइड इन कीटोन. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसके अंदर. आई विल मेक इट हियर समवेयर. थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है. ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्डीहाइड एंड कीटोन ओनली. तो सबसे इफेक्टिव अल्डीहाइड होता है HCH डबल बॉन्ड O, फॉर्माल्डिहाइड. उसके बाद RCH डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद RCR डबल बॉन्ड O. ये याद रखने का. फॉर्माल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एनी अदर अल्डीहाइड. एनी अदर अल्डीहाइड इज रिएक्टिव देन कीटोन. एंड अल्काइल कीटोन्स आर more reactive than C6H5 C double bond O C6H5 फिनाइल कीटोन्स. अभी रीज़न क्या है बराबर नोटिस करो. खाली मैं ये एग्जांपल दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ऑर्डर क्यों ऐसा बनाया. रीज़न ये है कि a nucleophile will go and attack on a C double bond O system where C has delta positive charge and O has delta negative charge. इस पे अटैक करता है. मतलब जितना ज़्यादा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा. ये दिमाग में रखना. ओके, तो रिमेंबर दिस. अच्छा, नाउ यू कंपेयर HCHO डबल बॉन्ड O एंड RCH डबल बॉन्ड. दोनों कंपेयर करते हैं हम लोग. तो इफ़ यू टॉक अबाउट HCHO, इस पे भी डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस है. ये कार्बन पे डेल्टा प्लस है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है. But the delta positive charge on the carbon of formaldehyde is much more greater than acetaldehyde या any other aldehyde. क्यों? Because in this case in any other aldehyde there is a presence of alkyl group. Alkyl is plus I group. plus I क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है towards the electron deficient carbon. तो जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर C पे डालेगा, जिसके वजह से C का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बिकॉज ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम डिक्रीज. और अगर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम हो जाएगा बिकॉज न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द पॉजिटिव सेंटर. सो इफ we give this nucleophile a preference to attack, it will go and attack on the formaldehyde more because the positive intensity on this carbon atom is much more greater as compared to the positive intensity of this carbon atom. बिकॉज इस कार्बन का पॉजिटिव इंटेंसिटी कम हो रहा है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट. सेकेंड थिंग, अगर आप कीटोन डालोगे तो 2 R आ जाएंगे तो और ज़्यादा प्लस आई होगा. और इसका सेकेंड रीज़न ये है जितना अल्काइल ग्रुप कार्बोनिल के आसपास होगा उतना ज़्यादा स्टीयरिक फैक्टर होगा. तो इन दोनों के लिए हमको याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में इन सब सारे एग्जाम्पल्स के लिए एस प्लस आई इंक्रीजेस, ठीक है, या प्लस आर इंक्रीजेस. देखो C6H5 होगा तो प्लस आर होगा, रेजोनेंस, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O को. तो रेजोनेंस की वजह से ये पूरा C डबल बॉन्ड O न्यूट्रलाइज होगा. जैसे अगर मैंने इसको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया C डबल बॉन्ड O, H लिया बेंजाल लिया, तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ गया अटैक करने के लिए इस C पे, सोचा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है बट ये बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा और इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं पाएगा. और सेकंड थिंग, ये न्यूक्लियोफाइल को सिर्फ एक ही ऑप्शन है अटैक करने के लिए, ये ऑक्सीजन की साइड से अटैक नहीं कर सकता, रिंग के साइड से अटैक नहीं कर सकता बिकॉज दोनों नेगेटिव चार्ज है. तो देयर विल बी अ स्टेरिक फैक्टर इन रिपल्शन. इसके लिए रिंग वाले कंपाउंड अक्रॉस C डबल बॉन्ड O इज लीस्ट रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्काइल एंड अल्काइल्स आर लीस्ट रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इफ प्लस आई इंक्रीजेस प्लस आर इंक्रीजेस, reactivity, nucleophilic addition decreases. Okay, तो it is inversely proportional to nucleophilic addition. ये याद रखने का for aldehyde and
कीटोन, तो सबसे रिएक्टिव अल्डिहाइड कौन सा हुआ, फॉर्मा, फिर एनी अदर अल्डिहाइड, फिर अल्काइल कीटोन्स, फिर फिनाइल कीटोन, बिकॉज फिनाइल कीटोन में सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. सो दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन.